Our next topic is laws of logarithm. Number 1, log m multiplied by n with base a is equal to log m plus log n with base a. फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये कहता है आपसे कि अगर टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं लॉग के साथ, तो देन इट इज़ इन एक्सपेंडेड फॉर्म multiply chain into plus sign and these two terms separately with log. For example, log a 5 multiplied by 7, we have to apply the law number 1. Then we can write it as log a 5 plus log a 7. Second example of first law. Log with base 10, 2 multiplied by 3 multiplied by 5. We can write it as log 10 3 plus log 10, so 2 plus log 3 plus log 10 5. This is first law. फर्स्ट पहले कानून के मुताबिक अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा टर्म्स वैल्यूज़ के दरमियान, तो हम इस मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करेंगे प्लस के अंदर. नाउ सेकंड, इफ़ टू टर्म्स आर डिवाइडिंग ईच अदर, अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, लॉग कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, then divide chain into minus sign. Log m divided by n is equal to log m minus log n with base a. For example, log a 7 divided by 3, that is equal to log a 7 minus log a 3. Now second example, log 10 3 upon 5, that is equal to log 10 3 minus log with base 10 5. This is the second law of logarithm. Now according to third law, if there is a power involved in the given number, then the power right before the log. अगर किसी नंबर के ऊपर पावर होगी तो पावर जो है वो लॉग से पहले लिखी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, लॉग विद बेस a 5 power 4, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 इज़ द पावर एक्सपोनेंट है, तो जब हम इस थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो लॉग से पहले आएगी, यानी कि पहले 4 लिखेंगे, देन राइट लॉग a 5. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, लॉग 10 7 7 1 power 1 upon 5. So we can write it as the power is 1 upon 5, so we write first 1 upon 5 log 10 7 7 1. So these are the three laws of logarithm. Now we are solving a question from exercise 3.5. The question is, if log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771 and log 5 is equal to 0.6990, find the values of the following logarithms. Now we are solving few questions, few part of this question. Question number 14. Question number 14 is log 30 with base 10. Now we are solving this question. We have to find the value of this by using these values.
एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर इनके जितने भी पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स के अंदर हमें, चूँकि हमारे पास सिर्फ log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर जो भी नंबर हमें गिवन होगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर विद बेस 2, 3 एंड 5। हमें उसको नंबर 2, 3 और 5 में चेंज करना पड़ेगा, जो भी नंबर हमें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। सो log 10, 30 is equal to log 10, 30 को चेंज करेंगे, we can write 30 as 2, 3 and 5 because we have to put the values of 2, 3 and 5. Log 10, 30 is equal to, now by applying the laws of logarithm, multiply change into plus sign. So we can write log 10, 2 plus log 10, 3 plus log 10, 5. Now we have to put the values of log 2, 3 and 5. Log 2, 10, 2 is equal to 0.3010 plus log 3. The value of log 3 is 0.4771 plus log 5. The value of log 5 is 0.6990. By adding these numbers, the answer is 1.4771. This is the answer of this question. So log 10, 30, log 1030, the value of log 1030 is 1.4771. Now we are solving another question, that is question number 19. Question number 19 is log base 10 4 under root 3. Log 10 4 root 3 is equal to log 10. Now we have to change 4 root 3. 4 multiply root 3 means 3 power 1 upon 2. Next, multiply sign change into addition sign according to laws of logarithm, and power become right before the log. So we can write it as log 10 4 plus log 10 3 power 1 upon 2. Next step, log 10 4 means 2 power 2 plus log 10 3 power 1 upon 2. Again, by applying the law of logarithm, power right before the log 10 2 plus 1 upon 2 log 10 3. Now by putting the values of log 2 and log 3, 2 multiply by log 2, the value of log 2 is 0.3010 plus 1 upon 2 multiply the value of log 3, 0.4771. 2 multiply 0.3010 is equal to 0.6020 plus 0.4 divided by 2 is equal to 0.2385.
By adding these two numbers, the answer is 0.8405. The value of log 10 4 root 3 is equal to 0.805. The next topic is logarithm. How can we find the value of logarithm with the help of log table? For example, we have to find the log of 4563. First thing, you have to remember that a log value consists of two digits. Log value consists of two digits. One is characteristics and second is mantissa. These two parts join to make the value of log. So we have to find the characteristic and mantissa of this number 4563. Characteristic, सबसे पहले हम characteristic के बारे में जो समझेंगे कि characteristic कैसे find करते हैं. For example, we have to find the characteristic of this number 4563. Characteristics असल में point की movement है. Point को देखते हुए हम कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करते हैं. अगर पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव होगा. अगर पॉइंट राइट साइड में मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगा. इन दिस क्वेश्चन, इन दिस नंबर 4563, द पॉइंट, वेयर इज द पॉइंट? यस, द पॉइंट इज एक्सट्रीम, is on extreme right hand side of the number. पॉइंट यहाँ पे है और हमें पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद लेके जाना होता है. एक बात जहन में नोट कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ज़ीरो होंगे स्टार्ट में तो वो डिजिट काउंट नहीं होगा. इसलिए हमेशा जो 1 से अबव जो नंबर डिजिट होगा वो काउंट होगा. तो पॉइंट यहाँ से इधर आएगा. द कैरेक्टरिस्टिक इज 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के जा रहा है, इस तरह मूव कर रहा है तो पॉजिटिव है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मल्टीसा ऑफ दिस नंबर. मल्टीसा जो है हमेशा पॉइंट के बाद के नंबर होते हैं जो हमें चार्ट से देखने होते हैं, 4 डिजिट्स. मल्टीसा कैसे मालूम करते हैं? वो सबसे पहले हम जब चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं. तो पहले तो 2 डिजिट्स होंगे वो एक साथ दिए जाते हैं पेयर फॉर्मेशन के अंदर, और थर्ड नंबर जो होता है वो अलग लेते हैं. तो 3 डिजिट्स तो कंपलसरी हैं, यानी कि जब हम चार्ट के अंदर देखेंगे तो 3 डिजिट्स का होना ज़रूरी है. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 3 डिजिट्स पूरे नहीं आ रहे तो हम अपनी तरफ से 0 ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर इसकी जगह पे अगर ये नंबर होता 45 तो हमें तो टोटल 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं चार्ट के देखने के लिए, टेबल को देखने के लिए. तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 5 के बाद एक 0 ऐड कर लेते हैं. ये एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर इसके बजाय अगर एक नंबर होता 5, वी हैव टू फाइंड द मल्टीसा ऑफ 5, तो हमें तो 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड होता है टेबल देखने के लिए. तो हम क्या करेंगे, 5 लिखने के बाद अपनी तरफ से 0 ऐड कर लेते और, ताकि वो 3 डिजिट्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 45 है, पेयर लिया पहला, उसके बाद सिंगल डिजिट्स लिया. फोर्थ जो है वो ऑप्शनल होता है, अगर फोर्थ नंबर है तो ठीक है, वो जो है वो डिफरेंस कहलाता है. डिफरेंस वो लास्ट में ऐड करते हैं. तो इसमें फोर्थ डिजिट मौजूद है तो वो डिफरेंस होगा, वो ऐड होगा. अब हम क्या करेंगे, लॉग टेबल के अंदर 45 का 6 को देखेंगे, चेक करेंगे. तो यहाँ पे आप देखें ये लॉग दिया हुआ है, लॉग टेबल है, और इस लॉग टेबल के अंदर ये यहाँ से 10 से शुरू होते हैं नंबर्स और इस तरह आगे 100 तक जाते हैं. ये देखें 99 तक.
तो ये यहाँ से आप देखेंगे पेयर जो होता है वो यहाँ से देखा जाता है, और सिंगल जो थर्ड डिजिट होता है वो यहाँ से देखते हैं। तो पेयर जो है वो यहाँ से देखते हैं, और डिजिट जो सिंगल डिजिट थर्ड वाला है वो आप यहाँ से देखते हैं इस तरफ से। तो यहाँ पे देखें 45 का 6 है, ये 45 है, और ये यहाँ पे 6590। तो ये नंबर दिया हुआ है 6590। तो चूंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 4 डिजिट मौजूद है, तो हम यहाँ पे साइड में अलग से लिखेंगे 6590, क्योंकि जो फोर्थ नंबर जब दिया होता है तो वो डिफरेंस ऐड होगा। तो जो डिफरेंस होता है वो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये 1 से लेकर 9 तक है, ये डिफरेंस की कॉलम है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है दैट इज़ 3 है, तो हम यहाँ से चेक करेंगे। तो ये आपके पास ये 3 है। इस लाइन के अंदर 45 के अंदर जो नंबर आ रहा है वो दैट इज़ 3, वो 3 है। देखें 45 का 3, यहाँ पे डिफरेंस में 3 में ये 3 आ रहा है, ये आप देखें यहाँ पे ये 3 है। तो 45 जो हमारा पहला पेयर था, डिफरेंस 3 है, और इसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो दैट इज़ 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने क्वेश्चन में यहाँ पर 3 को प्लस कर लेंगे। जब हम डिफरेंस को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6593। तो जो नंबर यहाँ पे आया वो हम यहाँ पे लिखेंगे मेल्टिसा के अंदर पॉइंट के बाद। तो आंसर आया 6593। उसके बाद ये हमने कैरेक्टरिस्टिक भी मालूम कर लिया, ये हमने मेल्टिसा भी मालूम कर लिया टेबल से। चूँकि हमारे पास यहाँ पर ये पेयर और उसके बाद सिंगल और फिर फोर्थ नंबर भी आ रहा है, तो हमने क्या किया कि वो डिफरेंस को प्लस कर लिया, दैट इज़ 3। 6590 + 3 = 6593। वी राइट इन द मेल्टिसा कॉलम 0.6593। मेल्टिसा याद रखें दोबारा कि हमेशा जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। नाउ द लास्ट रिजल्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4563, दैट इज इक्वल टू पॉइंट से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आ गया 3, और पॉइंट के बाद ये नंबर आ गया 6593। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर एक बात और जहन में नोट करें कि जो लॉग वैल्यू होती है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो लॉग वैल्यू जो है वो इन दोनों से मिलकर बनती है, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो लॉग वैल्यू फॉर्म करते हैं। तो पॉइंट से पहले जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, और पॉइंट के बाद जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि मेल्टिसा कहलाता है। तो मेल्टिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों मिलके लॉग वैल्यू फॉर्म करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल नंबर 2, question is find log 0.0075. This is a question. This is example of second example. Now characteristic. मेल्टिसा कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ होना चाहिए। पॉइंट राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है, तो जब राइट हैंड साइड मूव करता है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। द कैरेक्टरिस्टिक इज -3।
मेंटिसा 0 पॉइंट, लेफ्ट साइड से पेयर लेते हैं तो पेयर 75 है, तो हमें पेयर के साथ सिंगल डिजिट चाहिए होता है। 75 तो दिया हुआ है, थर्ड डिजिट नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0। हम 0 ऐड करेंगे तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 का 0 देखेंगे टेबल के अंदर, दैट इज 8751। नाउ therefore log 0.0075 इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद मेंटिसा आ गया, दैट इज 0.8751। अब कैरेक्टरिस्टिक इज -3, माइनस का 3 जब आएगा तो 3 के ऊपर बार, तो माइनस जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो याद रखें कि जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है तो आंसर के अंदर बार की फॉर्म में उसको लिखा जाता है, 3 बार, हम नेगेटिव -3.8751। और नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी लॉगरिथम। नाउ वी हैव टू फाइंड एंटी लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर। सपोज एग्जाम्पल, इफ log n is equal to 1.8256, find n। याद रखें कि एंटी लॉग जो होता है वो लॉग के बाद, यानी कि हमें उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटी लॉग मीन्स 1/log, एंटी लॉग। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n मालूम करना है, इस लॉग को रिमूव करना है। जब हम लॉग को रिमूव करेंगे तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग, both the sides। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंटी लॉग, log n इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.8256। on left hand side log and anti-log cancel out each other, then on left hand side n is equal to, on right hand side we have to find the value of 1.8256, anti-log of 1.8256। जब हम एंटी-लॉग मालूम करते हैं तो जिस तरह हमने लॉग के अंदर पेयर लिया था बिल्कुल इसी तरह लेंगे, लेकिन हम पॉइंट के साथ पेयर लेते हैं, ये यानी कि पॉइंट के साथ ही जो दो नंबर होंगे वो एक साथ लेंगे। 0.82 चाहे कोई भी हो, चाहे 0 ही क्यों ना हो, 0.82 का 5 देखेंगे और 6 डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉग के टेबल के अंदर। तो 0.82 का 5 और 6 डिफरेंस, चूँकि इसमें 4th नंबर आ रहा है तो इसलिए हम डिफरेंस को ऐड करेंगे। अगर ये 6 नहीं होता तो हम सिर्फ 82 का 5 देखते, लेकिन चूँकि 4th नंबर मौजूद है इसलिए हम डिफरेंस भी ऐड करेंगे। तो जब हम एंटी लॉग के टेबल को देखते हैं तो हमें 82 का 5 देखना है। तो यहाँ पर एंटी लॉग के टेबल के अंदर 82, आप देख लें कि यहाँ पर एंटी लॉग के अंदर पॉइंट भी दिया होता है, और चूँकि हमारे क्वेश्चन के अंदर 0.82 है तो यहाँ पे आप देखें 0.82, 0.82, 5, 82, 5, 0.82, 5, that is equal to 6683. The number is 6683. Now we add the difference 6. On difference 682 is equal to 9. The digit is 9. The digit is 9. Now we add this 9 as a difference. 9, 6, 9, 82, 9. Now we add 9 in this number. The answer is 6692. So we write 6692. जो डिफरेंस ऐड करने के बाद नंबर आया वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट से पहले जो नंबर है
आपको पहले जब लॉग पढ़ा था तो आपको बताया था कि ये पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 6 के बाद। और चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हम लॉग का रिवर्स चलेंगे। लॉग के अंदर जब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता था तो हम इस तरह मूव करते थे, लेकिन एंटी लॉग में हम इस तरह मूव करेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव में हम इस तरह मूव करेंगे। ठीक है, लॉग का रिवर्स होता है यहाँ। तो पॉइंट यहाँ मौजूद है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है 1, तो पॉइंट यहाँ से मूव होकर इधर आएगा, यहाँ लग जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ n इज 66.92। Our next topic is arithmetical computations with the help of logarithm. Question is, solve 8.485 multiply 48.67 with the help of logarithm. This is the question. We have to find the value of these numbers. So, first step, let, सबसे पहले हम लेट करेंगे क्वेश्चन को। लेट x इज इक्वल टू 8.485 मल्टीप्लाई 48.67। उसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तमाम क्वेश्चंस के अंदर जिसके अंदर आपको सॉल्व करना है, पहला स्टेप हमारा होगा कि हम अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेंगे। x इज इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप, अगर क्वेश्चन में रेडिकल साइन आ रहा है, अगर क्वेश्चन में रेडिकल साइन आए इस तरह, तो हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रेडिकल साइन होता तो हम इसको कन्वर्ट करते पावर में। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम अगर रेडिकल साइन है तो हम उसको पावर में चेंज करेंगे। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में नहीं है रेडिकल साइन, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अगला स्टेप करेंगे नेक्स्ट, दैट इज टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। तो हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लॉग लेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 8.485 मल्टीप्लाई 48.67। तो हमारा सेकंड स्टेप है लॉग लिया, लॉग दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 8.4। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लॉस को अप्लाई करते हैं, जो हमने लॉस पहले किए थे। तो मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, डिवाइड माइनस हो जाता है, और पावर जो है वो लॉग से पहले आती है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ पे जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 8.485 प्लस लॉग 48.67। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी अप्लाई की, फर्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई जो है वो कन्वर्ट हो गया प्लस के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने इससे पहले टॉपिक किया था जिसमें हम लॉग वैल्यू मालूम करते थे, बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे दोनों की अलग अलग लॉग वैल्यूज़ को मालूम करेंगे। हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू रहेगा, लॉग वैल्यू जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा दोनों से मिलके बनती है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, वहीं पर मौजूद है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है 0। पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, ये यहाँ से पॉइंट इधर मूव करेगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, तो 1। उसके बाद हम इसका मेंटिसा चेक करेंगे, 84 का 85, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा चेक करेंगे। डबल पेयर लिया 84, फिर सिंगल टर्म, फिर सिंगल 48, 6 और फिर 7 प्लस करेंगे डिफरेंस, और इसका मेंटिसा 9287। जब हमने इसका मेंटिसा मालूम किया तो 9287 आया, और इसका आया 6872। उसके बाद सॉल्व किया इसको, लॉग एक्स इज इक्वल टू प्लस किया तो 0.9287 प्लस 1.6872। उसके बाद नाउ नेक्स्ट लॉग एक्स इज इक्वल टू वी एड बाय एडिंग दीज टू नंबर्स द आंसर इज 2.6159।
जब हमारे पास लॉग वैल्यू आ गई, देन नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द एंटी लॉग. टेकिंग एंटी लॉग. नेक्स्ट स्टेप एंटी लॉग लेंगे. एंटी लॉग लेफ्ट हैंड साइड में log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ द वैल्यू 2.6159. जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू थी उसका लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज इक्वल टू x. log x और एंटी लॉग दोनों कैंसिल हो गए और राइट हैंड साइड के ऊपर पॉइंट के बाद पेयर लिया, सिंगल वैल्यू पर सिंगल वैल्यू. तो 61 का 5 और 9 डिफरेंस हम चेक करेंगे टेबल के अंदर, एंटी लॉग के टेबल में. द आंसर इज 4130. जब हमने टेबल से चेक किया एंटी लॉग के तो आंसर आया 4130. उसके बाद पॉइंट, अब हम पॉइंट लगाना है. पॉइंट हमने कहा था कि हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, तो पॉइंट से पहले 2 कैरेक्टरिस्टिक है, तो पॉइंट यहाँ मौजूद है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस है, तो हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे. देन आंसर इज 413. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. 23.4 multiply 0.681 divided by 413. First step is let x is equal to 23.4 multiply 0.681 divided by 4.13. Next step is taking log both the sides. Now log x is equal to log 23.4 multiply 0.681 divided by 4.13. Now applying the laws of logarithm, log x is equal to multiply become plus log 23.4 plus log 0.681 divide become minus log 4.13. Now we have to find the value, log value of this. Characteristic plus mantissa. Characteristic plus mantissa. Mantissa जो है वो पॉइंट के बाद लिखा जाता है, इसलिए हमने पहले से बना दिया. Characteristic plus mantissa minus characteristic plus mantissa. The characteristic ऑफ दिस नंबर, द पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए. पॉइंट यहाँ से मूव हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक इसका है 1. यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद. द कैरेक्टरिस्टिक इज -1. पॉइंट यहाँ होगा, 0 कोई नंबर नहीं है तो ये है -1. द कैरेक्टरिस्टिक इज -1. 4.13 द कैरेक्टरिस्टिक इज 0. Mantissa 23.4 3692. टेबल में चेक किया 3692. 23 का 4, 68 का 1. द 68 1 द Mantissa of 68 1 8331. 41 3 Mantissa of 41 3 6160. 6160. Now log x is equal to 1 plus open the brackets 1.0.3692 minus 1 plus 0.8331 minus 0.6160.
log x is equal to, by solving this, the answer is 0.5863. This is the log value. Now we have to remove log by taking anti-log. Anti-log, log of x is equal to anti-log 0.5863. Log, anti-log cancel out, x is equal to 5863 difference. 58 का 6 और 3 डिफरेंस चेक किया एंटी लॉग में. द आंसर इज 3858. नाउ वी हैव टू राइट द पॉइंट. कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, पॉइंट यहाँ पे होता है तो वहीं पर लगेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है. द आंसर इज 3.858. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज द होमवर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3. एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 कंप्लीट करनी है. उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में ऑड क्वेश्चंस करने हैं. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऑड क्वेश्चंस. एक्सरसाइज 3.5 में इवन क्वेश्चंस करने, 3.6 में ऑड क्वेश्चंस करने और 3.7 में ये क्वेश्चन 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 13. तो ये आपने अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. असल में ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें. आपको मेथड आना चाहिए. क्वेश्चंस ये हैं, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. आप अपने तौर पे प्रैक्टिस के लिए घर पे बाकी जो क्वेश्चन नहीं करवा रहे तो वो भी आपको अपने तौर पे करने हैं प्रैक्टिस के लिए. इसके अलावा जो एग्जांपल्स मैंने नहीं करवाई वो भी आपने अपने तौर पे प्रैक्टिस के तौर पे करनी है. लेकिन ये जो काम मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी लिखा है ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. दिस इज़ योर होमवर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3.